Hello everyone, how's you all? I hope all of you are safe and fine at your home. So today I am going to start with the topic reproduction, in which I will describe you male reproductive system. ठीक है? Male reproductive system comes under the topic of reproduction of class 10th and human reproduction in class 12th. So welcome to Science Freak. Let's start with the reproduction part. Firstly, before starting male reproductive system, I want to tell you some brief introduction about the reproduction. Firstly, what do you mean by reproduction? It is the capacity to give birth to young ones. जैसे हमारे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. Similarly, reproduction is also one of the major part which is required for the continuity of race, continuity of population. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो आगे नए ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे? इतने सारे रिसोर्सेज को कौन यूज करेगा? सो रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू न्यू स्पीशीज, टू न्यू यंग वंस. ओके, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर sexual reproduction as well as asexual reproduction. Sexual reproduction occurs in those organisms which are like mammals, like dog, cat, humans. ये सारे कौन सी reproduction करते हैं? Sexual reproduction. Sexual reproduction में हमारे पास क्या आ जाता है? It is a biparental kind of reproduction which involve the usage of gametes. Gametes क्या होते हैं? These are the sex cells which are present in the human male and human female and also present in the dog, cats, etc. जो भी organism sexual reproduction करते हैं. And what is the difference between asexual and sexual? Sexual reproduction is biparental, but asexual reproduction is uniparental. Single parent is involved in the process of reproduction. जब उस parent की growth maximum level पे हो जाती है तो वो अपने आप को divide करके 2 में कर लेते हैं अपने जैसे ही. And asexual reproduction में variations भी कम होती हैं. जो जैसे parents होते हैं उनके daughter organisms भी बिल्कुल उनके जैसे same होते हैं. जो बिल्कुल copy होते हैं उनके लिए हम term use करते हैं clones. They are the clones. But in case of sexual reproduction, the major benefit is that they create evolution. Evolution, they create species. क्योंकि इनमें क्या है? Variations है. कोई genes क्या है parents में नहीं भी present हो सकते, बच्चों में हो सकते हैं. जो एक gene male फादर में एब्सेंट था, वो क्या पता है वो हमारे जो नए आने वाला ऑफस्प्रिंग होता है उसमें प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज वो मदर में प्रेजेंट हो सकता है. तो इसकी वजह से क्या है, कुछ वेरिएशंस अराइज होती हैं. द वेरिएशंस आर द पार्ट व्हिच राइजेस द एवोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पिछली वीडियो में मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, बाइनरी फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह वगैरह. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें करवाया था sexual reproduction in flowering plants, and now in this video we will start with the human reproduction. जो human reproduction है उसको start करने से पहले I want to tell you that one term puberty. Puberty is the age which is also known as teenage, which starts from the 13 year and ends at the 19 years. ठीक है? This period of 13 to 19 is also known as adolescence period. Adolescence is a transition period between the childhood and the adulthood. ठीक है? In this period, sex organs get matured. जो students होते हैं, जो teen age में बच्चे होते हैं, उनके जो sexual parts हैं वो क्या है? They start to attain maturity. ठीक है? And वही जो sexual parts हैं वही क्या है? Reproduction में क्या है? Help करते हैं. ठीक है? तो जब बच्चे टीन एज में होते हैं उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आती हैं, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है, जो बॉयज की बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है. ठीक है? ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच हो जाता है. ठीक है? ये सारे क्या है हमारे पास चेंजेस हैं. फीमेल की बॉडी में भी चेंजेस आ जाती हैं, जैसे वॉइस चेंजेस होते हैं. ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, मंथली पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है. ये सारे चेंजेस क्या फीमेल बॉडी में आते हैं. ठीक है? So this is the startup of the reproduction. Now we will start with the male reproductive system. तो देखो male reproductive system consist of, इसके काफी सारे इसमें चीजें आ जाती हैं. जैसे फर्स्ट आ गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो हमने पढ़ना टेस्टिस के बारे में, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया.
टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है? क्योंकि टेस्टिस है जो वो क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। सेकंड, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक तो बोला जाता है क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इट कम्स अंडर द क्लास ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है। तो अगर मेल के जो नेक्स्ट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे बियर्ड, ग्रोथ, मस्कुलर बॉडी, वो सारे क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। एंड जो रिप्रोडक्शन है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहा है, वो स्पर्म की वजह से हो रहा है। दोनों ही प्रोसेसेस किस में हो रहे हैं? टेस्टिस में हो रहे हैं। इसीलिए टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद टेस्टिस कितने होते हैं? वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द मेल बॉडी। ठीक है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। These testes are soft, oval in shape, but distended out from the abdominal cavity. ये हमारे स्टमक वाले एरिया जो abdominal cavity है वहां पे नहीं प्रेजेंट होते. They are distending out from the abdominal cavity and present in a pouch-like structure known as scrotum. ये जो testes है किसमें प्रेजेंट होते हैं? scrotum में प्रेजेंट होते हैं, which is hanging outside the abdominal cavity in between the two legs. उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? इसमें काफी सारी डक्ट्स भी होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं एक्सेसरी डक्ट्स. दिस इज न्यू फॉर 10th क्लास बट एंड इट इज नेसेसरी फॉर 12th क्लास. कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स हैं? एक तो होते हैं बेटा रेटे टेस्टिस. आई विल एक्सप्लेन. रेटे टेस्टिस के बाद क्या आ जाता है? वास डिफरेंशिया. वास डिफरेंशिया के बाद क्या आ जाता है? एपिडिडमिस. एपिडिडमिस के बाद आ जाता है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट. इट इज अ शॉर्ट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट. फिर आ जाती है यूराइनोजेनिटल डक्ट विच इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एज वेल एज सीमन. यूराइनोजेनिटल डक्ट. ये सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये डक्ट सिस्टम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट. पहले मैं तुम्हें सारे नेम्स बता रही हूँ. नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सेसरी ग्लैंड. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं? 3 ग्लैंड्स हैं. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, 1 पेयर. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ओनली 1, नॉट पेयर. फिर आ गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड. इट इज ऑल्सो 1 पेयर. जब सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया देन आई विल टेल यू द फंक्शंस ऑफ दीज ग्लैंड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. External genitalia is scrotum and penis. Okay, रजत देखो, ये सिर्फ मैंने तुम्हें क्या बताया? नेमिंग बताई है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? 1 इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस. सेकंड एक्सेसरी डक्ट्स आ जाती हैं. फिर हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स आ गए जो कितने हैं? 3 हैं. फिर आ गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, स्क्रोटम एंड पेनिस. एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी के बाहर हैंग करता है, बाकी सारी चीजें क्या है? मेल बॉडी के इनसाइड पाई जाती है. ठीक है. सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं. सपोज दिस इज ओवल शेप्ड टेस्टिस. सपोज दिस इज ओवल शेप्ड टेस्टिस. ईच टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स. मतलब जो टेस्टिस है वो किस में डिवाइड हुआ हुआ है? आगे फर्दर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. ठीक है. ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको, ये कितनी कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट्स होती है? 250 कंपार्टमेंट्स होती है। इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। Each testis has 250 compartments. These compartments are known as testicular lobules. इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में हमारे पास छोटी छोटी कॉइल्ड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। These tubules are known as seminiferous tubules. In one compartment, 1 to 3 seminiferous tubules are present. 1 to 3 means एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ठीक है। 1 to 3 seminiferous tubules are present. ये जो seminiferous tubule है, इसका जो मैं थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम में तुम्हें बता रही हूँ। जैसे दिस इज वन seminiferous tubule, इसके अंदर कुछ सेल्स पड़े हैं। This seminiferous tubule is made up of germinal epithelium, and this is second seminiferous tubule, same as like that. In between the two seminiferous tubules, this is interstitial space. In this interstitial space, some cells are present which are known as interstitial cells. Interstitial cells. Other name is Leydig cells. These Leydig cells helps in the formation of hormone known as testosterone. Then next, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड है, इसमें दो तरह के सेल्स पड़े हैं। एक तो ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं, ये तो कौन से सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स, ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स। एंड जो ये वाले सेल्स हैं, इनको बोलते हैं हम मेल जर्म सेल्स। ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बार बार डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, एंड आफ्टर दैट ये क्या बना देते हैं? स्पर्म्स बना देते हैं। मेल जर्म सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्म, एंड जो स्पर्मेटोजोआ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बना है, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करेंगे। And in between the two seminiferous tubules, in this interstitial space, some interstitial cells are present, known as Leydig cells, which form the hormone testosterone necessary for the secondary growth of the male body. This is the internal structure of testis. Now, after that, sperms are formed in this seminiferous tubule, then enter in the rete testis. After the seminiferous tubule, sperms will enter in the rete testis. Rete testis we will not shown in the diagram. You have to learn that after the seminiferous tubule, it will enter in the rete testis. After rete testis, there is a small duct known as vasa efferentia. Sperm will enter in this vasa efferentia. After that, from this testis, let me draw it. Let me draw the diagram of male reproductive system. This is testis. From testis, one coiled tube arises known as epididymis. This tube is known as epididymis. And after the epididymis, this caudal end of epididymis form this duct known as vas deferens. Vas deferens is also known as sperm duct. Vas deferens loops over the urinary bladder. This is urinary bladder, opens here. This is urinary bladder, which store urine. These are the testes present in the scrotum. Okay, next is that
This is vas deferens. From the vas deferens, this duct arises. This is known as urinogenital duct. About ejaculatory duct, I will tell you. This is the diagram of male reproductive system, in which you have to learn the labeling also. This is scrotum. Scrotum is a darkly pigmented pouch-like structure present outside the abdominal cavity, and internally scrotum divides into two compartments with the septum. Two compartments क्यों? क्योंकि two testes are present. In one compartment one testis will lie, and in other compartment another testis will lie. And scrotum maintains the temperature 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than the normal body temperature, which is required for the production of sperm by the process of spermatogenesis. जो स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन लो टेम्परेचर चाहिए. सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर स्क्रोटम इज लाइंग आउटसाइड द abdominal cavity and hanging in between the two legs and holding the two testes in the two compartments. Okay. In this testis, seminiferous tubules are present. From the seminiferous tubules, sperms will enter in the rete testis. From the rete testis, it will enter into vasa efferentia. From vasa efferentia, sperm will enter in this coiled tube known as epididymis. Epididymis is a very short coiled tube. It stores the sperm temporarily. अगर स्पर्म्स ने बाहर रिलीज होना है, रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज इजैकुलेशन. अगर तो स्पर्म्स ने बाहर रिलीज होना है तो ये एपिडिडमिस क्या करेगी, इन स्पर्म्स को इस डक्ट में भेज देगी. इस डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस. एंड प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, मोबिलिटी टू द स्पर्म एंड मूव इन द वास डिफरेंस. दिस वास डिफरेंस इज अ लॉन्ग डक्ट नोन एज स्पर्म डक्ट कैरिंग द स्पर्म एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. जब ये स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू इधर तक आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगे. दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसिकल. जब ये सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस की डक्ट कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बनाएगी, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस की जो एक डक्ट कॉमन डक्ट निकलेगी, इधर से ये वाली डक्ट निकल रही है, ऊपर से वास डिफरेंस की डक्ट आ रही है. इस शॉर्ट डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे आके क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये जो स्पर्म यहाँ तक आ रहा था, फिर इस स्पर्म में इस सेमिनल वेसिकल के थ्रू कुछ सेक्रीशंस ऐड हो जाएंगे. सेमिनल वेसिकल विल ऐड सम सेक्रीशंस इन द स्पर्म. Firstly, sperm was a very thin liquid, but when it enters in the vas deferens and come in contact with the seminal vesicle, it will add 50 to 60% secretions in the coming sperm. वो secretions में क्या होगा, उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, इनोसिटोल होगा, फ्रक्टोज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे. ये सारे सेक्रीशंस जब ये कमिंग स्पर्म में आ जाएंगे, फिर ये स्पर्म क्या बन जाएगा, एक थिक विस्कस फ्लूइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर ये स्पर्म क्या है, यहाँ तक एंटर कर जाएगा, एंड ये जो यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट आ रही है एंड ये जो इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है, ये इकट्ठे होकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे हमारे पास यूराइनोजेनाइटल डक्ट बना देंगे. फिर इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, यूराइनोजेनाइटल डक्ट बोलेंगे. ठीक है. अब इस यूराइनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू सीमन भी बाहर आ रहा है, यूरिन भी बाहर आ रहा है. मतलब इट मींस इन मेल देयर इज अ सिंगल डक्ट फॉर द रिलीज ऑफ यूरिन एज वेल एज फॉर द रिलीज ऑफ सीमन. यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक पिरामिड शेप ग्लैंड बन जाएगा. जिस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड. ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करता है, 30% सिक्रीशंस ऐड करता है कमिंग स्पर्म में. ये जो स्पर्म आया था पहले सेमिनल वेसिकल ने सिक्रीशंस ऐड किए, नाउ प्रोस्टेट ग्लैंड विल ऐड सम सिक्रीशंस. कौन से सिक्रीशन, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे ऐड करेगा टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, सो दैट स्पर्म की मूवमेंट क्या है वो और इंक्रीज कर दे.
उसके बाद हमारे पास पेयर ऑफ ग्लैंड एक और आ जाएगा. One pair of glands are present which is known as bulbourethral gland or Copper's gland. ये जो bulbourethral gland है, this will add some secretions to increase the lubrication of urinogenital tract or the penis. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद ये जो कमिंग स्पर्म है, ये इस यूराइनोजेनिटल डक्ट के थ्रू, इस ग्लांस पेनिस के थ्रू क्या है, इट विल रिलीज आउट. The releasing out of sperm out from the male external genitalia is known as ejaculation. जब sperm बाहर रिलीज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ejaculation बोलते हैं. In one ejaculation there will be a millions of sperm which are releasing out in the form of semen. Semen is a white colored transparent liquid which contain millions of sperm, and those sperms, if required to get fertilization, enter in the female reproductive tract to fertilize the egg. This is the concept of male reproductive system. If any doubt is there, you can ask me. You can take screenshot, you can add comment if you want to ask any doubt. Thanks for watching.